Hello friends. So our next topic of discussion is Indian Independence Act 1947. So as you know that India has got actual dominion status by means of this act only, Indian Independence Act 1947, and it is based on June 3, 1947 Plan of Mountbatten. So based on Plan of Mountbatten. Mountbatten has put forward a June 3, 1947 plan in front of Indian leaders, which is called the Mountbatten Plan, and that actually got accent किसका of Britain यानी कि पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट in July. I think it has got accent on 19th July, and 19th July it has got accent and came into force on you already know 15th August 1947 में ये फोर्स में आ गया. So by means of this act only India has got dominion status, or you can say the independence which we used to celebrate from then onwards till now, and will be celebrating in future also 15th August as our Independence Day. So we'll understand some points about the Indian Independence Act 1947. ठीक है, but before understanding this I want you to understand that before actually presenting or put forward this plan of June 3, 1947, Mountbatten has put forward another plan which is called the Balkanization Plan. Balkanization Plan, है ना? I think it is introduced in around May 1947, but that was rejected actually by the Indian leaders with a single voice that it cannot be accepted at any cost, because as per this plan the provinces are given the right to join India or Pakistan, or to remain independent also. So Nehruji fears that this plan leads to balkanization, Indian balkanization, इंडिया का balkanization हो जाएगा, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा भारत. तो it was rejected with a single voice, or unanimously it was rejected by the Indian leaders, this balkanization plan. So after this was rejected by the Indian leaders, Mountbatten put forward another plan, which is the June 3, 1947 plan, which was ultimately passed as Indian Independence Act 1947, which was unanimously accepted by not only by India but by the Pakistan also, or you can say by the Congress as well as Muslim League. So what is that plan? So we'll understand about this plan. So आप जानते हैं इसके माध्यम से India is partitioned into India and पाकिस्तान, पार्टीशन हो गया इंडिया का. सो टू डोमिनियंस विल बी क्रिएटेड, है ना? दो डोमिनियंस क्रिएट किए जाएंगे, आई इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान कैसे क्रिएट किया जाएगा? पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड बाय मर्जिंग वेस्ट पंजाब, then East Bengal, then Sindh, then NWFP, and then Sylhet. ये पांचों मर्ज किए जाएंगे पाकिस्तान में. एक्चुअली ये मर्ज डायरेक्टली नहीं बोले गए थे, इनका बोला गया था, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल और NWFP का. ठीक है, ये मर्ज कर दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने वोट किया था to merge into Pakistan.
legislative assemblies of Punjab, Bengal and NWFP vote to join Pakistan. So टुकड़े हो गया था पाकिस्तान का. पंजाब will be partitioned into East Punjab and West Punjab. So West Punjab के जो मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने यूनानिमसली वोट किया था that we will be joining Pakistan. Similarly East Bengal and NWFP. सिंध और सिलहट, इसमें क्या होगा? सॉरी, सिंध ऑल्सो. NWFP एंड सिलहट. NWFP में क्या होगा? रिफरेंडम होएगा और सिलेट में भी रिफरेंडम होगा. एंड बाय मींस ऑफ रिफरेंडम, तो NWFP ने पाकिस्तान के लिए वोट किया और सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, दिस इज एन असम डिस्ट्रिक्ट, इट ऑल्सो वोट्स फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान. सो सिंध, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट पंजाब, सो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने और सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली ने वोट किया, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने, कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे. वाइल NWFP और असम सिलेट में रेफरेंडम हुआ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये आपको पता होना चाहिए रेफरेंडम कहाँ हुआ था. NWFP और सिलेट में रेफरेंडम के माध्यम से इंडिया में इनका एक्सेंट हुआ था, सॉरी पाकिस्तान में एक्सेंट हुआ था. सो बेसिकली टू डोमिनियंस, मैं डोमिनियन के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूँ कि दो डोमिनियंस क्रिएट कर दी गई, इंडिया और पाकिस्तान. फुल फ्रीडम नहीं है, डोमिनियन है, यानी कि अभी भी इनके ऊपर जो इनके हेड ऑफ द स्टेट होंगे, गवर्नर जनरल, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग. सो इंडिया एंड पाकिस्तान, while India, so the Pakistan will be taken out from India by merging West Punjab, East Bengal and Sindh, while NWFP and Sylhet will be deciding by means of referendum. So eventually they decide to merge with Pakistan. So this means, so by this way these territories have been merged in Pakistan. And you already know Balochistan and all those things. So वो तो princely states थे, ठीक है. So this is the most important point of Indian Independence Act. अब हम कुछ और points पढ़ लेते हैं Indian Independence Act के. What is the next point? Second point, till the constitutions are formed. ये दोनों, हाँ, एक इंपॉर्टेंट कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया में सेटअप हुई है, सो दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश्ड, जो स्टैब्लिश हुई है ना, सो दैट, तो इट्स अथॉरिटी stopped to apply those areas which merged in Pakistan. ठीक है, उसको अप्लाई नहीं करेगी ये. और यू कैन है will not be applied to those areas, will not be applied to those areas which merged in Pakistan. So a separate constituent assembly will be set up for Pakistan. ठीक है, पाकिस्तान के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की जाएगी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लीजिए. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो स्टैब्लिश हो गई थी, वो पाकिस्तान में उसकी अथॉरिटी सीज टू एग्जिस्ट फॉर पाकिस्तान. ठीक है, एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी सेट अप फॉर पाकिस्तान. थर्ड पॉइंट, वाइसरॉय का पोस्ट, वाइसरॉय पोस्ट डिसबैंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. वाइल पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल गॉट क्रिएटेड, गवर्नर जनरल का पोस्ट क्रिएट किया गया था, गॉट क्रिएटेड, विच who acts as the head of the state, head of the dominion, can say head of the dominion. And this governor general appointed by British king इसको अपॉइंट करेंगे on the advice of dominion cabinet.
ठीक है, डोमिनियन की कैबिनेट जो एडवाइस करेगी उसके हिसाब से वो अपॉइंट करेंगे गवर्नर जनरल को। द गवर्नर जनरल हैज द full right to veto or extend the bills, ठीक है, in the name of the king, ठीक है, किंग के नाम पे वो कुछ भी एक्सेंट और वीटो कर सकते हैं बिल्स को। थर्ड पॉइंट, वाइसरॉय पोस्ट खत्म कर दी गई और गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट कर दी गई। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 1948 जून तक रहे। एंड सेकंड एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान के यही थे, जिन्ना, until his death. Next, fourth point, जो ब्रिटिश किंग, you can say British Parliament, authority to make laws for India cease to exist, है ना, खत्म हो जाएगा। और किंग्स suzerainty, so I'll make this point a separate one. British Parliament to make laws cease to exist. Next, fifth point, Secretary of State post खत्म, Secretary of State for India disbanded कर दी, खत्म कर दी। न्यू पोस्ट Secretary of State for Commonwealth Affairs created, इंस्टेड ये क्रिएट कर दी गई, ठीक है, ये खत्म कर दी गई और ये क्रिएट कर दी गई। नेक्स्ट, ब्रिटिश सुजरेनिटी authority over in any form over the Indian provinces cease to exist, है ना, cease to exist। और यू क्या अथॉरिटी, सुजरेन और सोवरेनिटी खत्म हो गया। एंड सेवंथ, ब्रिटिश मोनार्की सुजरेनिटी थी ना, ओवर प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी विद ट्राइबल एरियाज सीज टू एग्जिस्ट, ये खत्म हो गया, सीज टू एग्जिस्ट खत्म हो गया, प्रिंसली स्टेट्स और ट्रीटी भी खत्म कर दी गई। The Constituent Assembly will become a sovereign body, ये sovereign body बन गई। It can make laws for India, है ना, इंडिया के लिए लॉज बना सकती है, and can repeal any old law made by British Parliament, including this act itself, ये भी एक्ट लॉ बनाया जा सकता है इंडिया के लिए, बनाएगी, सॉवरेन बॉडी होगी। तो आप जानते हैं कि जब ये, और पहले मैं बता दूं कि ये कोई भी एक्ट रिपील कर सकती है पुराना। और व्हेन इट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन it met as a legislative body, ठीक है ना। तो स्पीकर कौन होगा?
जीवी मावलंकर, ये हेड होंगे इसके। वैसे हेड राजेंद्र प्रसाद थे, बट लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मीट करेगी, तो जीवी मावलंकर विल बी हेडिंग दी अफेयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 9th पॉइंट, टाइटल ऑफ ब्रिटिश किंग एज एम्परर ऑफ इंडिया, एम्परर या किंग ऑफ इंडिया अबोलिश कर दिया गया, ठीक है, किंग ऑफ इंडिया नहीं होंगे। 10th, India ceased to exist as member of Commonwealth till it accent to it separately, ठीक है, कॉमनवेल्थ का मेंबर इंडिया नहीं रहेगा अगर इसने एक्सेंट कर लिया सेपरेटली। सो इन 1948 Constituent Assembly accepted the membership of Commonwealth of Nations, एक्सेप्ट कर ली थी 1948 में फाइनली। तो लेकिन ये कॉमनवेल्थ का मेंबर सीज कर जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन फाइनली 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो मेंबर रहेगा कॉमनवेल्थ का। कॉमनवेल्थ रील का मेंबर नहीं रहेगा, बट कॉमनवेल्थ का मेंबर रहेगा। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि ये जस्ट यू कैन से द ब्रिटिश किंग जस्ट एक रबर स्टैम्प हेड ऑफ इंडियन डोमिनियन रहेंगे विदाउट एनी रियल अथॉरिटी, ओवर इंडियन अफेयर्स। यू कैन से फिगरेटिव हेड, just a figurative head of Indian dominion without any real authority over Indian affairs. While अभी आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये अभी भी क्वीन को अपना हेड मानते हैं, क्वीन को अभी भी हेड मानते हैं अपना एज द हेड ऑफ द स्टेट। ऑब्वियसली अथॉरिटी तो नहीं होती, बट ये हेड मानते हैं। बट हम लोग क्वीन को अपना हेड नहीं मानते, बट हम कॉमनवेल्थ का मेंबर रहेंगे। बट हम ब्रिटिश किंग फिगरेटिव हेड थे इंडियन डोमिनियन के लिए टिल 26 जनवरी 1950, जब हमारा रिपब्लिक तक फिगरेटिव हेड थे इंडियन डोमिनियन के। बट वो अभी भी हेड ऑफ द स्टेट क्वीन को मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका कंट्रीज, न्यूजीलैंड, ठीक है। नेक्स्ट, सिविल सर्विसेज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिश किंग अथॉरिटी ओवर अपॉइंटमेंट of civil services cease to exist, ठीक है, वो सीज करेगा, यानी कि अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। However, अपॉइंटमेंट made prior to the 15th August 1947 continue to hold लीगैलिटी, ठीक है ना, वो सिविल सर्विसेज लीगल रहेंगी, उसके बाद अपॉइंटमेंट नहीं कर पाएंगे। मेड प्रायर टू इट कंटिन्यू टू होल्ड लीगैलिटी एंड इट बिकम्स द प्रेरोगेटिव ऑफ इंडियन डोमिनियन, ठीक है, सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट करना।
So these are the important points of Indian Independence Act 1947. एनी अदर पॉइंट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लगभग सारे पॉइंट हो गए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरेन बॉडी हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाँ, और एक लास्ट पॉइंट हो रह गया, 13 पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली till it makes a new constitution, है ना, till it makes a new constitution, the Indian affairs will be governed by Government of India Act 1935. So these are the important points of the Indian Independence Act 1947 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से गवर्न होंगे इंडियन अफेयर, जब तक नया संविधान की रचना नहीं हो जाती। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टडी अबाउट दी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था इसमें। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैज गिवन दी ऑप्शन टू एक्सटेंड टू इंडिया, पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब हम देखेंगे कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे इंडिया में एक्सटेंड किया गया इन द नेक्स्ट लेक्चर।